Hello, dear students. I hope you are all doing well. I welcome you on the channel Math for All. For quite some time, I was just doing videos for higher mathematics like BSc and MSc. But students are writing that I should, also do some part of 11th and 12th. So here I am. So I'm starting with this R.D. Sharma. This is, I think, the most liked book, and I think everybody who is doing some schooling in India, he or she is definitely doing the exercises of R.D. Sharma. So I thought, so that is the best way to start if I want to start with class 11. So here we are doing class 11, chapter 29, exercise 29.1. So because there are so many questions, so we'll be doing it in parts. So this is part 1. So mostly this exercise is about limits. So tell me, students, I hope you already have studied what is limit. But before going to these questions, I'll briefly talk about what is limit. So suppose you have a function. Suppose you have a function f of x. So basically you have x-axis here and you have f of x-axis. This is your y-axis where you plot the values of f of x. So you have like this is your function, suppose, right? At any point, say for example x is equal to a, we talk about the value of the function f of a, right? So what is f of a? F of a is what will you get as a number when you put x is equal to a in f of x. But now we have something else. Instead of f of a, we are talking about limit x going to a f of x. So you will see that sometimes the value of the function at x is equal to a will not be defined, or there is some problem at that point. But limit means we are trying to say, okay, this is x is equal to a. When you reach, and this is your function, this is the graph of the function, and at this point you can reach from left side also and you can reach from right side also. So if when you reach x is equal to a, when you reach x is equal to a from left hand side, so that is when you when you are trying to approaching, when you try to approach a from left hand side, to what value of f of x you reach, to what value of f of x you reach. Okay, so whatever is this number, we call it as left hand limit. We call it as left hand limit, and we write it as limit x going to a from left hand side f of x. And similarly, when you approach to x is equal to a from right hand side, when you reach x is equal to a from right hand side, so आपने एक बार लेफ्ट साइड से आना है, एक बार राइट हैंड साइड से आना है. So when you approach from right hand side, okay, so to what value of f of x you reach, to what value of f of x you reach, okay, we call it as right hand side limit. So we call it as right hand limit. Okay, so we write it as limit x going to a from positive side f of x. ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे. ज़रूरी नहीं है कि जब आप x इज इक्वल टू a को रीच करें तो f ऑफ x विल रीच समवेयर. दिस इज नॉट नेसेसरी, राइट? यू मे और मे नॉट रीच, बट इन केस यू रीच, then you call it as left hand limit. And similarly, if you reach to some value from when you turn up from right hand side, you call it as right hand limit, right? So if these two values are equal, if left hand limit is equal to right hand limit, left hand limit is equal to right hand limit, we say that limit exists. Okay, and we call it as limit x going to a f of x. So what is the idea? Idea ये है बेटा, देखिए, अगर आपके पास सपोज, मुझे एक सिंपल क्वेश्चन पूछने दीजिए. सपोज देर इज़ वन शॉप हियर, राइट? सपोज दिस इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम शॉप इन योर सिटी, राइट? योर फेवरेट आइसक्रीम स्पॉट है. तो यहाँ से व्हाट डू यू, अगर आप यहाँ से आ रहे हो, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है. मान लो ये आपका घर है, दिस इज़ योर होम, एंड ये आपका स्कूल है, दिस इज़ योर स्कूल, राइट? घर से स्कूल जाते हुए यू आर
रीचिंग द आइसक्रीम शॉप फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एंड स्कूल से घर आते हुए यू आर रीचिंग द आइसक्रीम शॉप फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि आइसक्रीम शॉप वहीं हो, मतलब आप चाहे इधर से आओ तो भी आप आइसक्रीम शॉप पे पहुंचो, इधर से आओ तो भी आप आइसक्रीम शॉप पे पहुंचो. दिस इज रियलिटी, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट. अगर ऐसा हो कि अगर यहाँ से आ रहे हो तो आइसक्रीम शॉप आ रही है, और अगर आप इधर से आ रहे हो तो वही चीज़ आपके ट्यूशन सेंटर बन गया, विच यू डोंट लाइक. तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? सो दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड. ऐसा ही हम फंक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट से आएँ तो भी उसी वैल्यू पे रीच करें, और राइट से आएँ तो भी उसी वैल्यू पे रीच करें. अगर ऐसा होता है तो वी से लिमिट एग्जिस्ट करती है. अगर ऐसा नहीं होता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. देन वी विल सी दैट फॉर दोज फंक्शंस जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे फिर वी से कि ये पॉइंट में कुछ गड़बड़ है. वी कॉल दैट पॉइंट एज सिंगुलर पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, राइट? उसको हम बाद में पढ़ेंगे, राइट? सो ये आइडिया है कि हम रियल लाइफ में जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा हम अपने फंक्शन से एक्सपेक्ट करते हैं. सो दैट इज द आइडिया ऑफ लिमिट. ओके, सो आई होप ये एनालॉजी आपको समझ में आए. सो अभी हमने क्वेश्चंस कैसे करने हैं. जब भी आपके पास लिमिट का क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, मोस्टली क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. अगर करता है तो वो बराबर है कि नहीं. इफ़ दे आर इक्वल देन द लिमिट एग्जिस्ट, राइट? सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो जब भी आपको प्रूव करना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और प्रूव करेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे देखिए, शो दैट this limit does not exist. So we have limit x going to 0, x divided by mod of x. So we have limit x upon mod of x, x going to 0. So we have to show limit does not exist. So let us compute the left hand side limit. So if we compute the left hand side limit, left hand limit, so आपने क्या करना है, आपने 0 को अप्रोच करना है. 0 को लेफ्ट हैंड से कैसे अप्रोच किया जा सकता है? यू कैन राइट 0 माइनस एच, राइट? क्योंकि 0 माइनस एच कैसा नंबर होगा? अगर एच पॉजिटिव है, जो नेगेटिव नंबर होगा. और 0 को अप्रोच कराने के लिए एच को 0 करेंगे, और यहाँ से आने के लिए आप क्या नंबर यूज़ करोगे? 0 प्लस एच. सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वील राइट लिमिट एच गोइंग टू 0, जहाँ जहाँ एक्स है उसको मैं 0 माइनस एच कर रही हूँ. इज इट मेकिंग सेंस? ओके, सो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या करना है, हमने एक्स को 0 माइनस एच लिखना है. सो ये हो गया आपके पास लिमिट h गोइंग टू 0, पॉजिटिव है ये h, ठीक है, वेयर h इज पॉजिटिव. क्योंकि अगर h ही नेगेटिव हो गया फिर वो लेफ्ट हैंड साइड वाली बात आपकी पूरी नहीं होगी. सो दिस इज मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच. अब h जो है वो पॉजिटिव है तो माइनस एच का मॉड क्या होगा? h, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है. तो लिमिट h गोइंग टू 0 माइनस एच अपॉन एच. ये कैंसिल हो गया क्योंकि h एग्जैक्टली 0 नहीं है. 0 आप कैंसिल नहीं कर सकते, बट यहाँ h इज गोइंग टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0, तो ये कैंसिल हो गया. सो लिमिट h गोइंग टू 0 माइनस 1, इसमें h है नहीं तो लिमिट आपकी माइनस 1 आ गई. लिमिट क्या आ गई? माइनस 1. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने नेक्स्ट क्या करना है? राइट हैंड लिमिट. अब इसी क्वेश्चन में हम राइट हैंड लिमिट अगर निकालें तो क्या आएगा बेटा आपका? तो आएगा लिमिट h गोइंग टू 0. राइट हैंड लिमिट में मैं क्या करूँगी? x को 0 प्लस एच कर दूंगी. सो दैट विल बी 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 0 प्लस एच वेयर h इज पॉजिटिव. ऐसे करेंगे ना, वेयर h इज पॉजिटिव. तो अभी आपके पास क्या हो गया? दिस इज लिमिट h गोइंग टू 0 h अपॉन मॉड ऑफ h. अब क्योंकि h पॉजिटिव है तो मॉड h होगा, तो ये h अपॉन h लिमिट h गोइंग टू 0, तो ये आ गया आपका 1. सो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1 माइनस 1 एंड राइट हैंड लिमिट आ गई 1. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके बेटा, तो अब अगर आप इसको ग्राफिकली देखो, जरूरत नहीं है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू आर डन. बस आपने यही शो करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. बट जो मैंने आपको बताया कि हो क्या रहा है इसमें, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करो x अपॉन मॉड x अपॉन मॉड x में क्या फ़र्क है? जब x नेगेटिव है तो ये माइनस 1 होगा, x जब पॉजिटिव है ये प्लस 1 होगा ना. दिख रहा है ना आपको? क्योंकि x कैंसिल हो जाएंगे और माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का तो माइनस 1 आ जाएगा. तो जो आपका फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x लिखा है वो एक्चुअली ऐसा फंक्शन है फॉर x नेगेटिव, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये है, और 0 पे डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे ही 0/0 फॉर्म बन रही है, वो अनडिफाइंड फॉर्म है. तो हमारा क्या बन रहा है? हमारा ऐसे बन रहा है
ऐसे ग्राफ ऐसे बनेगा। अब यहाँ से आ रहे हो तो आप -1 पे पहुँच रहे हो, और यहाँ से आ रहे हो तो +1 पे पहुँच रहे हो, 0 पे। तो दिस इज़ नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट इन रियल लाइफ। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो अच्छा फंक्शन है, जिसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी वो अच्छा फंक्शन नहीं है। ओके अच्छा फंक्शन कैलकुलस की सेंस में नहीं है। तो दिस इज द आइडिया। तो इस केस में हम कहेंगे वी विल से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऐसे ही हम सारे आर डी शर्मा की सारी एक्सरसाइजेस कर देंगे। सो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। सो यू हैव find k, can you read this question? Find k so that limit x going to 2 f of x may exist where fx is this. तो हम चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करे। तो x इज इक्वल टू 2 पे क्वेश्चन में देखिए, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो ये वैल्यू है, और राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो ये वैल्यू है। कैन यू सी? लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो क्या वैल्यू है, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो क्या वैल्यू है, राइट। So let me clean board, little bit of my board. Just a minute. Okay, so we can use I don't know why eraser is not working. It's okay. So अभी हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये वाली वैल्यू है और राइट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यू है। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूँगी, व्हेन आई विल कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके में क्या होगा, लिमिट x गोइंग टू 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी दिस, राइट, 2x + 3। और आपको पता है कि लिमिट निकालने के लिए अगर सिंपल पॉलिनोमियल है तो हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 2 × 2 + 3, सो दैट विल बी 4 + 3, दैट इज 7। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 7 आ गई। और इसी क्वेश्चन में अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा जब आपके पास ये है लिमिट x गोइंग टू 2x + k, राइट। तो जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सो दैट विल बी 2 + k। सो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। आप चाहते हो लिमिट एग्जिस्ट करे। फॉर लिमिट x गोइंग टू 2 f of x टू एग्जिस्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 + k = 7. So that gives us k = 7 - 2. That gives us k = 5. So that is our answer. They are saying that for what value of k the limit exists. So the answer is for k = 5 the limit will exist. Okay students. तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ऐसे ही हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके। और अगर आपके पास कोई और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। So we'll look at those doubts also. Thank you for watching. We'll continue with question 3 in the next video.